डिगरी लेके बबुआ बेचे ले तरकारी, बाप के रुपया भइल जियान, नौकरी मिलल नाही सरकारी, बाबूजी देवे रोजगारी, सुनाए बाबा कल की अवतारी, सुनाए बाबा कल की अवतारी। एमटेक बीटेक डिगरी लेके बबुआ बेचे ले तरकारी, बाप के रुपया भइल जियान, नौकरी मिलल नाही सरकारी, बाबूजी देवे रोजगारी, सुनाए बाबा कल की अवतारी, सुनाए बाबा कल की अवतारी। खाली दाढ़ी बढ़ावे खाली फोटो खिंचावे करते हैं जुमलेबाजी, अरे बने ले खुद के विश्व गुरु है जो ऐसे हैं सैया जी। खाली दाढ़ी बढ़ावे खाली फोटो खिंचावे करते हैं जुमलेबाजी, बने ले खुद के विश्व गुरु है जो ऐसे हैं Look at folks, as we get ready for the third Charan and Punjab, I do a little bit more on federalism and the screechy sermonization that Pradhan Mantri did against Rahul Gandhi. But look at what we got. Channi to voters, keep out UP, Bihar, Delhi, de paye. Now that's kind of sad, but that's also reality because next day he was in UP, Matha Tekewing in Ravidas's temple. ABG, another feather in Congress's overburdened cap of Grab's BJP. This guy's got to get a head check, man. It was NPA, declared NPA in 2013. These guys are supposed to nail him, they didn't. So all the masla of taking money and letting him, Farhar apparently is very close to, this Agarwal fellow is very close to the Prime Minister. This is called the Gujarat lobby. Police dismiss conspiracy theory in Deep Sidhu case. Now that's kind of funny. Why are they even, I suspect there is something funny. And here's something I want to read, right? While we are all laughing at Rahul Gandhi's speech today, but I smelled something else in the speech. Rahul Gandhi set the tone for 2024 election. The Congress last election before, they are wrapped in history pages. He's wrong, G. Parthasarathy. He kept referring to India as a union of states and not as a nation. The next toolkit will be regionalism and the fight between states. He kept praising Tamil Nadu and Kerala. Clearly, they are trying to provoke the North versus South failure along with regional parties promoting state nationalism to counter the nationalism agenda of BJP. 2024 will be nationalism versus union of states regionalism. Breaking nation into regionalism is best in the interest of China. United India is a growing powerhouse and that is not in China's expansionist policy. GS Parthasarathy, he should know better. The more powerful our regions are, the greater this country is. Why do I say that? Because everything, whether it is Hamari Do, Hamare Do, everything seems to be going towards Gujarat way, including all the scams. 5 heads of state, including Russian PM, to be part of vibrant Gujarat. That's why is it always all about Gujarat? And this is where my worry is. It says this is cultural. To my mind, it's cultural hegemony, centralized socialism, cultural hegemony, centralized financial resources. That's what's it all about. But it's run up against Tamil Nadu and West Bengal. Why? Because they've met their match in cultural chauvinism. There's nothing called a Nagpur version of Indian culture and nationalism, Mr. Parthasarathy. And the people who actually hit the balloon, where it all started to crumble before it hit West Bengal, were the Marathas, was Shiv Sena. Sena's Hindutva merely on paper. Fadnavis hits back at, you'll hear the tape. What Uddhav said is really hate Fadnavis. But Fadnavis is hardly whatever. Rawat alleges rupees 25,000 crore IT scam during Fadnavis' rule. BJP seeks evidence. ED ignoring misdeeds of BJP leader Shiv Sena Sanjay Rawat. ED set after me as I refuse to help topple Maharashtra government, says Rawat. Aditya to be face of Sena expansion outside Maharashtra. This is the best thing that has happened to the Congress, let me tell you, in Maharashtra, folks, because this has kind of blunted BJP's Hindutva campaign and appeasement campaign against Congress. Cheers. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ममता बनर्जी के साथ बदतमीजी और बड़पोलेपन के बावजूद जब से बीजेपी ने बंगाल चुनाव गंवाया है, उसके पुराने साथियों के कंठ खुलते जा रहे हैं। अकाली दल के बाद अब शिवसेना ने भी बीजेपी को हिंदुत्व के बाजार का सेल्समैन बताकर उसका चेहरा लाल कर दिया है। दरअसल बाला साहेब ठाकरे की 96वीं जयंती के अवसर पर शिव सैनिकों से एक ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम में बीजेपी पर उद्धव ठाकरे ने जोरदार हमला बोला है। दोनों पार्टियों के बीच 25 साल तक गठबंधन रहा। शिवसेना बीजेपी के इतिहास की पहली साझेदार थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 25 साल की यह युति बेकार चली गई। हमने उन्हें पाला, लेकिन इसके एवज में हमें क्या मिला? धोखा और बेईमानी। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर तीखा वार करते हुए कहा, बाला साहब बोलते थे बीजेपी गजकरण है, उसने सत्ता के लिए हिंदुत्व का चोला पहना है, वह हिंदुत्व के कारोबारी हैं, और बाद में वो इसी की ठेकेदारी करने लगे। वो कहते हैं हमने हिंदुत्व पर समझौता कर लिया है। दरअसल वो हिंदुत्व को समझते ही नहीं है। हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है, बीजेपी को छोड़ा है। और वो कान खोलकर सुन ले, बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है। हमने सत्ता के लिए हिंदुत्व का कभी इस्तेमाल नहीं किया, जैसा कि राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी करती रही है।
स्पाइन सर्जरी के बाद से उद्धव ठाकरे राजनीतिक कार्यक्रमों से दूर रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी टेकर सरकारें होती हैं, वैसे बीजेपी महाराष्ट्र में केयर टेकर विपक्ष है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन्होंने हिंदू हित के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ लगातार छल किया है और अब उन्हें इसकी कीमत चुकाने की तैयारी करनी चाहिए। पिछले दिनों अमित शाह ने चुनौती दी थी कि अगर शिवसेना में हिम्मत हो तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें गृह मंत्री अमित शाह की चुनौती स्वीकार है। वो पुणे आए थे और हमें अकेले लड़ने की चुनौती दी थी। शिवसेना अब महाराष्ट्र के बाहर भी अपना दायरा बढ़ाएगी और राष्ट्रीय भूमिका में आएगी। हम दिल्ली में भी बाला साहब ठाकरे की एक मूर्ति लगवाएंगे। उद्धव ठाकरे ने इतिहास याद दिलाते हुए कहा कि जब बीजेपी राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ रही थी तब उसने शिवसेना समेत कई क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया। उस वक्त कई जगहों पर बीजेपी की जमानत जब्त हो जाया करती थी, लेकिन हाथ में सत्ता आते ही उसके नेता संजय राउत भारतीय जनता पार्टी के किस नेता को चप्पल से पीटना चाहते हैं और क्यों? बीजेपी के किस नेता के बारे में राउत ने कहा कि वो ईडी के वसूली एजेंट की तरह काम कर रहे हैं? क्या ईडी के जरिए संजय राउत के बच्चों और शरद पवार के घर की महिलाओं तक को धमकाया जा रहा है? संजय राउत ने बीजेपी के किस नेता के बारे में कहा कि हजारों करोड़ के बैंक घोटाले का रुपया उसने अपने बेटे की कंपनी में लगवाया? राउत ने क्यों कहा कि महाराष्ट्र हमारे बाप का है और हम बीजेपी की ईडी सीडी से डरने वाले नहीं हैं? क्यों कहा कि हरियाणा का एक दूध वाला 5 साल में 7,000 करोड़ का मालिक बन गया और पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले में उसकी सीधी पहुंच थी? किस नेता को कहा कि वह दलाल है और हम उसे सबक सिखाएंगे? क्या 10 मार्च तक उद्धव सरकार को पलटने की तैयारी थी? ये सब ऐसे आरोप हैं जिसने बीजेपी को हिला दिया है। एक दिन पहले ही राउत ने कहा था कि बहुत बर्दाश्त सन्नाटा छा गया। संजय राउत तो थे ही, उनके साथ अरविंद सावंत थे, अनिल देसाई थे, प्रियंका चतुर्वेदी थी, आनंद राव वडसुल थे। इनके अलावा और भी कई नेता मौजूद थे। संजय राउत की पहली ही लाइन थी, पूरी शिवसेना यहां मौजूद है। हम ये बताने आए हैं कि नामर्दों की तरह वार करने वालों से शिवसेना कभी डरने वाली नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 20 दिन पहले बीजेपी के कुछ प्रमुख लोग 3 बार मुझसे मिलने आए और बार बार मुझे यह कहने का प्रयत्न किया कि मैं इस सरकार से निकल जाऊं। हमारी पूरी तैयारी है, हम या तो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे या कुछ विधायकों को हमारी तरफ ले लेंगे। मैंने कहा कि यह कैसे संभव है? उनका कहना है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, मदद नहीं की, तो केंद्रीय जांच एजेंसियां तुम्हें टाइट कर देंगी, तब तुम पछताओगे। संजय राउत के मुताबिक इस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगर सरकार गिरी तो महाराष्ट्र शांत नहीं रहेगा। तब उन्होंने कहा कि हम केंद्र से फोर्स बुलाएंगे और आपको पछताना पड़ेगा। One wonders why this Varun Gandhi is still hanging around in the BJP and Maneka Gandhi, the way they've been shared. But she's come out and she's nailed Amit Shah and everybody else, right? But Varun Gandhi's been doing it for a while, managing to keep everyone guessing. This was a long time ago. Hathras, Khedi, show law and order, no better now than under Yogi government. This was when that happened. This was good old Varun. Here are the tapes that are coming up. Important to note, Varun Gandhi is a loose cannon, folks. Is a loose cannon, and especially going up into this phase. बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। बीजेपी का एक बड़ा नेता, युवा नेता, सांसद सपा में शामिल हो सकता है। तो आखिर कौन है वो बीजेपी का बड़ा नेता जो बीजेपी में रहकर विपक्ष जैसा बर्ताव कर रहा, जो पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहा है? ये सब कुछ आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर पार्टी को लेकर जिस तरह से ट्वीट्स कर रहे हैं, वो बता रहा है कि पार्टी में उपेक्षा उनकी किस तरह से हो रही है। लगातार वो मुद्दों को लेकर अपनी ही पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। वरुण गांधी वो पहले नेता थे जिन्होंने लखीमपुर कांड पर कार्रवाई की मांग की थी बीजेपी में रहते हुए। जब बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी लखीमपुर कांड में बचाव में जुटे हुए थे, तो वरुण गांधी ने ट्वीट्स करके सबसे पहले टैनी के बेटे की गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके बाद सिलसिलेवार ढंग से उनके ट्वीट्स सामने आते रहे, जिसमें उन्होंने कभी किसान बिल वापसी, कभी कानून व्यवस्था, कभी देश की इकोनॉमी, और अब तो जब किसान वापस घर लौट चुके हैं तब भी उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए एमएसपी पर कानून बनाने की मांग रखती है। यानी वरुण लगातार अपनी ही सरकार को निशाने पर रखे। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता सेल्फ कॉल किए जा रहे हैं, एक के बाद एक किए जा रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए मुसीबत किए जा रहे हैं। वरुण गांधी ने पिछले दिनों जो ट्वीट किए, पूरे दुनिया में उसकी चर्चा हो गई। वरुण गांधी मुखर सांसद हैं, योग्य सांसद हैं और अपनी खास पहचान रखते हैं। अपने लेखन से, अपने ट्वीट से और अपनी योग्यता से पूरी दुनिया में इंटेलेक्चुअल जो खेमा है उसमें वरुण गांधी ने अपनी पहचान बनाई है। जिस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बात कोई सांसद बोलना तो छोड़िए, सोच भी नहीं सकता, उस समय वरुण गांधी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर एक के बाद एक ट्वीट करते रहते हैं। वरुण गांधी ट्वीट करते रहे, सरकार हमले झेलती रही, लेकिन अब जब तीसरा चुनाव चरण सिर पर है, अमित शाह कानपुर में रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, उसी समय मेनका गांधी मतलब वरुण गांधी की मां ने भी केंद्र सरकार की नीतियों पर जो हमला बोला है, उसने पूरी पार्टी को पसीने पसीने कर दिया है। बात छोटी होती है लेकिन बात गंभीर होती है। बात गंभीर होने के अर्थ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं।
कहा भी जाता है बिहार। एक दिन पहले वरुण गांधी लिखते हैं, अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रखते वक्त पुरुष का आत्मसम्मान भी गिरवी हो जाता है। किसी भी हिंदुस्तानी का जेवर या मकान का गिरवी रखना अंतिम विकल्प होता है। महामारी और महंगाई के दौरी मार झेल रहे आम भारतीयों को ये असंवेदनशीलता तोड़ देगी। क्या ये नए भारत की कल्पना है? और एक खबर है जो आप खबर देख रहे हैं, साइड में हेडिंग है, गोल्ड लोन नहीं चुकाने पर 1 लाख लोगों के गहनों की एक साथ नीलामी। ये खबर छपी है और खबर को ट्वीट करके वरुण गांधी ने लिखा, 2 दिन पहले कुछ किसानों ने सुसाइड कर लिया था कर्ज ना देने पे और देश का 22,000 करोड़ रुपए लेकर एक गुजराती भाग गया था। गुजराती बैंक का हजारों करोड़ लेकर भागते रहते हैं, किसी मंत्री की किसी सांसद की हिम्मत नहीं होती। मगर वरुण गांधी ने फिर एक बार मोर्चा खोला था। 2 दिन पहले उन्होंने लिखा कि देश का किसान या छोटा दुकानदार हजारों रुपए का कर्ज भी अदा न कर पाए तो उसकी कुर्की होगी या उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मगर हजारों करोड़ की चोरी करने वाले ये लोगों को आसानी से जमानत मिल जाती है और ये लोग मनमानी कीमत पर लेन देन करके फिर से अपने वैभवशाली जीवन में लौट जाते हैं। कुछ प्रचार में या जो प्रत्याशियों के जो प्रयास हैं मतदाताओं से संपर्क करने के, तो क्या अभी किस बात की जरूरत है कि हमें तेजी की जरूरत है? ये बहुत छोटा इलेक्शन है क्योंकि टिकट भी तो बटे आखिरी दिन पर, तो ये कम दिनों का इलेक्शन है। हम लोग ऐसे बहुत तेजी की जरूरत है। अभी वो तेजी आई नहीं है लेकिन आ जाएगी, 10 दिन बाकी हैं। कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है? मेहनत करें बस। मतलब ये कभी जो है जो एक बड़ा घोटाला 23,000 करोड़ का SBI का घोटाला गुजरात में अभी जो है, लेकिन वो लोग अभी तक घूम फिर रहे हैं, हाँ, आजाद है। और वो जो हमारे गांव में एक लड़का है उसका RC कटा है क्योंकि उसने 15,000 रुपए का बिजली का बिल नहीं दिया। ये देश में, जैसे मैंने अपने भाषण में बोला ना, कि ये देश में न्याय अगर एक सामान्य होता तो कितना अच्छा। The other chauvinistic region that the Prime Minister is hitting a wall is Tamil Nadu. It's the South essentially, the bastion of culture. Older probably than the North. That's the reality, no matter what kind of fobs you get, right? And when especially this, Stalin praises Rahul House speech on behalf of all Tamils, you gotta worry, right? And what does Komi Kapoor write? Southern distress, and they are distressed. If delimitation is implemented, states with low population growth rates such as Kerala and Tamil Nadu will see their share of representation in the House fall, while UP, Bihar and Rajasthan would increase their clout. Southern politicians say they will not allow their states to be politically marginalized for better family planning, and that is absolutely true. And the other person who's going to run up against Stalin because of their dreams is Mamta. You have this, BJP hits out at KCR's absence, insult to PM. And the funny thing is, you see, KCR is now full page ad. Amazing. KCR urges PM to sack Himanta over remarks on Rahul Gandhi. Another Rahul Gandhi fan. Sunday lunch for KCR and Thakre fight BJP on menu. DMK Stalin hints at meeting of opposition CMs in New Delhi. India under threat of bigotry, religious hegemony, Stalin writes to leaders. Absolutely true. And why you see that is this. Piyush Goyal refuses to answer DMK MP's question in English, triggers protests in Lok Sabha. They should nail this baniya. TN gets not to carry out excavation to unravel Tamil culture. Says, CM, this culture is going to have a lot of problem for the North. Especially the guys who keep talking about Aryans and Aryans. Guys, they're no Aryans. TN Assembly adopts anti-CAA resolution. Call from Mamta. Stalin says non-BJP CMs to meet soon. Hindutva fringe outfit seeks to make inroads into TN politics. ED attaches 6.5 crore assets of TN Mantri family in DA case. TN governor returns bill against NEET terms it anti-poor. Stalin-led meet resolves to send bill against NEET to governor again. And that, folks, is the real issue. That's what's happening there. Jai Hind. Tamil Nadu is the other place that these guys, a fortress they're not going to be able to preach. Jai Hind. आज हमें खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कदर बौखलाए क्यों हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के प्रचार तंत्र ने खुद उन्होंने इस तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। मगर आप अगर इस तस्वीर को जूम इन करके देखते हैं तो आप ये देखेंगे कि जनता कहीं और देख रही है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहीं और देख रहे हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यहां खड़े हैं और जनता कहीं और देख रही है? जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि चीफ मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल ने एक फोटोशॉप्ड तस्वीर जो है वो अपने ट्विटर हैंडल पर डाली है। फोटोशॉप यानी कि कहीं की चीज कहीं जोड़ी, भीड़ कहीं से उठाई, तस्वीर कहीं और से उठाई और उसे आपस में जोड़ दी। और ओरिजिनल तस्वीर यह है जब स्मार्टफोन्स को लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कुछ घोषणा की थी और यह तस्वीर जैसा कि आप देखते हैं कि आउटलुक मैगजीन में आई है। मगर सवाल यह पूछना पड़ेगा कि चुनाव के बीचों बीच इस तरह की फर्जी तस्वीरें क्यों मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। 30 सेकंड का वीडियो है, देखिए। जनता के सामने दिक्कतें पैदा की है, इनके हाथ से इसने
आज मेरा सवाल, क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और भाजपा इसलिए